Good morning, students. Today we are going to start with one of the important topic in physical chemistry, that is solid state. Solid state is basically one of the important topic for CBSE, and when we come about the NEET and IIT JEE, उसमें भी अच्छा खासा पूछ लिया जाता है. So let's start our solid state. We will be doing solid state in 3 parts. In the first part, we will be talking about the types of solid, what are the types of solid, then their further types, then what are the different type of lattice structures. Then in the second part, we will be discussing about the density formula, the de Bragg equation that will be asked in JEE questions most of the time. And then in the last part, we will be doing the imperfections in solid, what are the impurity defects in solids, and the properties of solid state like chemical properties, magnetic properties. Then we are going to study the conduction band theory. So let's start with our chapter, that is the solid state. So basically, as you know, there are 3 types of state that exist in the nature. The main type of state, one is solids, the another one is liquid, and the another one is gas. We are having 3 type of state: solid state, liquid state, gaseous state. When we have to define solid state, the main thing that strike my mind is solid is something that has fixed volume and fixed shape. When we are talking about for the class 9 definition, class 10 definition, so solid state, what do you mean by solid? Solid is anything that has a fixed shape and fixed volume. Then comes the liquid state. Liquid is anything that do not have any fixed shape, but they have the fixed volume, in which the container in which we are putting the liquid, they occupy the volume of that container. And gas is no fixed shape, no fixed volume. Then we have another parameters to define the 3 type of state. One is intermolecular force of attraction. In solid state, intermolecular force of attraction is very high. What do you mean by intermolecular force of attraction? इसको ऐसे समझेंगे, intermolecular force of attraction यानी कि मेरे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल A एंड अनदर मॉलिक्यूल B. ये दोनों मॉलिक्यूल्स अपने आप को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं? The force of attraction that is existing between these molecule is known as intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. So by this term, intermolecular force of attraction, we are able to justify why solid particles are close to each other. Solid particles are close to each other because they have strong intermolecular force of attraction. When we are talking about the gas state or we are talking about the liquid state, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, ना ही ज्यादा वीक होता है ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. जबकि हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल माना जाता है, बहुत ही कम होता है. अनदर पैरामीटर टू डिफाइन दीज स्टेट्स आर intermolecular distance. Intermolecular distance, another term is intermolecular distance. Intermolecular distance क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस. So in liquid, gases and solid, गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत रहता है, जबकि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ना के बराबर होता है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मूव अवर हैंड फ्रीली इन एयर, वी आर एबल टू मूव अवर हैंड इन वाटर इजली, बट व्हेन आई हैव टू मूव माय हैंड थ्रू दिस, it is not as easy because it exists in solid state, and in solid state the intermolecular distance is very less, due to which my hand will not cut this, my hand will not move through the space between the particles. Now डेंसिटी की बात कर लेते हैं. सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, लिक्विड की उससे कम, गैसेस की उससे कम. कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड जनरली नॉट कंप्रेसिबल. लिक्विड को मैं नॉट कंप्रेसिबल मानूंगा. जो बोलते हैं लिक्विड कंप्रेसिबल है वो लोग प्लीज मेरे को एक काम करके दे दीजिए, एक बोतल लीजिए, उसके अंदर 1 लीटर की बोतल 1.5 लीटर पेट्रोल ले आइए या कुछ भी ऐसा. जहां तक मैंने देखा है कि जो लिक्विड्स होते हैं दे आर अनकंप्रेसिबल. आप उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालने की वजह से होता क्या है लिक्विड में कि जब आप प्रेशर डालते हैं तो पार्टिकल्स पास आते हैं. अब पार्टिकल जैसे ही मेरे 2 पास आए, इनके बीच में स्टार्ट हो जाता है फोर्स ऑफ रिपल्शन. द फोर्स ऑफ रिपल्सन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दूर भाग जाते हैं. इसलिए लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, वेयर एज गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल.
Clear? So we are talking about the different type of states. We have done about the solid state. We have discussed about the solid state, liquid state, and the gaseous state. Coming next to our slide is what are the characteristic property of solid. The first one is solid have definite shape and mass. उनकी मैंने बात ये बोली थी कि उनकी जो शेप रहती है, shape that is fixed. Solid have fixed shape and also they have fixed volume. जबकि लिक्विड की सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती, और गैसेस की दोनों ही नहीं होती है. नेक्स्ट, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड्स आर शॉर्ट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में यही बात करी थी कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, the constant particles, it can be atoms, ions or molecules, they have fixed position and can only oscillate about their mean position. They do not leave their position. For example, if my particle is here, then it will oscillate. Oscillate means it will vibrate, to and fro motion में vibrate करेगा, अपनी position पे ही vibrate करेगा. Like this is my particle, ये ऐसे ऐसे vibrate करेगा. It will not leave its position कि पहले यहाँ vibrate कर रहा है, फिर यहाँ vibrate कर रहा है. ऐसे vibration नहीं होगी, वो अपनी mean position पे ही vibrate करेगा, oscillatory motion show करेगा. अब कई बार हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी solid को convert कर सकते हैं into liquid and the process is called fusion. सॉलिड में ऐसा क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड. हीट देने पे क्या होता है, यहीं से हमारा ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, यहां से हमारा आंसर पूरा जस्टिफाई हो जाएगा. हीट देने पर होता क्या है कि हमारा जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद वेरी हाई एनर्जी. अब जो इनकी एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हाई हो जाती है दैट दे ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हमने स्माइली बॉल देखे होंगे, स्पंज देखे होंगे, उनको तो हम जितनी भी ताकत से दबाएं वो तो दब जाते हैं. नाउ हम कैसे बोल सकते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल? होता क्या है, दे आर पोरस सब्सटेंस. पोरस सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है. तो पोरस सब्सटेंस होने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर एयर फिल हो रखी होती है, और जब मैं उन्हें टाइटली दबाता हूं, पूरी ताकत से दबाता हूं, तो उनकी एयर बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारा सॉलिड थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है. वो एक्चुअली कंप्रेस नहीं होता, वो बस जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जा रही है. दैट्स व्हाई सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल. आप मान लो उसकी पूरी एयर बाहर निकाल दी, उसके बाद उसे कंप्रेस करके दिखाइए, इट विल नॉट कंप्रेस. क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डेंसिटी, एज वी हैव डिस्कस्ड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस. नाउ द सॉलिड डिफ्यूजेस. अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है डिफ्यूजेस. अब डिफ्यूजेस का मतलब समझने से पहले हमें डिफ्यूजन का मतलब समझना होगा. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है इट इज अ बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच टू पार्टिकल्स मिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन. डिफ्यूजन में हमारे पार्टिकल्स आपस में ही मिक्स हो जाते हैं. दे डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी. और मिक्स का मतलब मेरा ये है जस्ट वो इस तरीके से मिक्स हो रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड यू रिक्वायर एनर्जी, बट फॉर मिक्सिंग यू डो नॉट रिक्वायर एनर्जी. मिक्सिंग को ऐसे समझिए, आपने सैंड लिया, आयरन फिलिंग्स ली, दोनों को मिक्स कर दिया, सिंपली जस्ट हाथ से मिक्स कर दिया. दैट्स व्हाई ऐसे प्रोसेस को डिफ्यूजन का समझ लो कि ये खुद ब खुद होने लगा, तो डिफ्यूजन. जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है, इसके अंदर कुछ गैस, इसके अंदर कुछ गैस, दोनों गैसेस को हमने मिक्स करा और मिक्स करने पर वो दोनों आपस में कंबाइन हो गई. दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद ब खुद मिक्स हो जा रही है. तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे डिफ्यूजेस वेरी लो, डिफ्यूजेस वेरी स्लो, सॉरी लो नहीं स्लो. द डिफ्यूजन प्रोसेस इज वेरी स्लो इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. गैसेस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन रेट बहुत जल्दी होता है, जबकि लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा कम, इंटरमीडिएट, और सॉलिड के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है. एंड लास्ट, मोस्ट सॉलिड बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसको हम फ्यूजन भी बोल देते हैं. एंड द टेम्परेचर एट विच दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. एंड द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स
एंड द मेल्टिंग पॉइंट वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर। मैं ये नहीं बोलूंगा हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या हर एक का लो होगा। द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, बिकॉज सॉलिड टू सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की खुद के पार्टिकल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होती है, इसलिए हम यही बोलते हैं that the melting point varies from one solid to another solid. Coming to the next slide, our next slide is classification of solid. Basically our solids are classified into two types. First is crystalline solid and another one is amorphous solid. This is important for CBSE. In CBSE this is asked कि differentiate between amorphous solid and differentiate between amorphous solid and crystalline solid. इन दोनों के बीच में differentiate करने को आ जाता है। अब देखा ये जाए कि आप differentiate कैसे करेंगे इनके बीच में, तो आपको पहले पता होना चाहिए ये होते क्या हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जनरली हमारे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट के सॉलिड्स होते हैं, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इनके अंदर एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलिए कि मेरा एक ये सॉलिड टाइप है, यहां पे पार्टिकल ए आया, देन यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल बी आए, दीज आर माई पार्टिकल बी, देन अगेन पार्टिकल ए आया, देन पार्टिकल बी। देखिए यहां पे एक रेगुलर अरेंजमेंट टाइप पैटर्न फॉलो हुआ है, ए बी टाइप का। तो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड कैसे होते हैं? दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनकी जो रेंज होती है दे आर जनरली लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनके अंदर जो ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है दे आर अरेंज्ड in a definite geometric pattern. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दे आर अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। क्लियर? 3D में जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, सो दे आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिक पैटर्न, ऑलवेज रिमेंबर। और जब आपने इनका एक्सरे डाइफ्रैक्शन किया, एक्सरे डाइफ्रैक्शन हमें एक्चुअली बताता है, इट इज अ टेक्निक जो हमें बताता है कि हमारे पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है, कहां पे कौन सा पार्टिकल है। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन किया तो उससे समझ में आया दैट द पार्टिकल्स दैट कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, they are arranged in a definite orderly arrangement. The order is fixed, that means uniform arrangement होता है throughout the solid. जबकि हम बात करेंगे अमोर्फस सॉलिड की, तो उसमें हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डर यूनिफॉर्म नहीं होता है। That's why जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज कौन सा होता है तो आप नहीं कर पाएंगे। बच्चा रट के क्या जाता है? क्रिस्टलाइन अमोर्फस, क्रिस्टलाइन अमोर्फस। वो ये नहीं देखता कि इनमें से कौन सा लॉन्ग रेंज है और इसमें से कौन सा शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। In fact, a crystalline solid consists of large number of small crystals, each having a definite character geometrical shape. यहाँ पे वही बात हो रही है कि हमारा जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक डेफिनाइट शेप है, दैट्स व्हाई हमारा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के अंदर आ जा रहे हैं। क्लियर? जब हम बात कर रहे हैं इसमें, अच्छा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? कॉपर, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ऑल्सो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, क्वार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट याद रखना। ये सब के सब हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं अमोर्फस सॉलिड की, तो अमोर्फस सॉलिड हमारे जो होते हैं इनके अंदर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होता। याद रखेंगे, अमोर्फस सॉलिड के अंदर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होता है। कैसे समझेंगे इसको? ध्यान से देखिए कि मेरे पास, मान लीजिए इधर बना के दिखा देता हूं कि एक टाइप पे यहां पर तो आ गया ए, फिर बीच में बी, फिर दोबारा बी आ गया, मान लो ए आ गया, फिर यहां पे बी आ गया, बी, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, देन अगेन ए आ गया, बी, ए, 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 बी, बी। तो इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है।
हमारे अमोर्फस सॉलिड के अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनको क्या बोला जाता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला जाता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों बोला जाता है? थोड़े टाइम तक अरेंजमेंट कुछ हो रहा है, उसके बाद अरेंजमेंट कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट कुछ हो रहा है। अरेंजमेंट हर टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद बदलती रह रही है। अब यहां पे ये नहीं बोल रहा मैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अरेंजमेंट बदल रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अरेंजमेंट का मतलब नहीं है कि अरेंजमेंट टाइम टू टाइम बदल रही है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस चले अरेंजमेंट कुछ और, थोड़ा सा और डिस्टेंस चले अरेंजमेंट कुछ और। इसलिए इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर के अंदर बोला जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए इस डायग्राम से दिखा जाएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इसमें देखो फिक्स अरेंजमेंट टाइप बनने की कोशिश हुई है कि जो पार्टिकल्स हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, उन्होंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी है। जबकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर ध्यान से देखिए, पहले ये ऐसा हुआ, फिर इस टाइप से, देन अगेन देयर इज नो फिक्स पैटर्न, क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल इसके ग्लास, रबर, प्लास्टिक, तीनों के तीनों हमारे अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अमोर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ये बात याद रखना। शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसलिए बोला जाता है इन्हें। कमिंग टू द डिफरेंस, हमने शेप की बात करी थी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप, whereas amorphous solids have irregular shape. That is the first point of difference। अगर मैं इनके शेप के डिफरेंशिएशन में बात कर रहा हूं, ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर में इनका को बोलते हैं that they are said to exhibit long range order, whereas they may have short range order। ठीक है, और इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। जो चीज अभी तक हमने पढ़ी वही इसमें लिखी हुई है। एक में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एक में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, एक में रेगुलर अरेंजमेंट है, एक में इरेगुलर अरेंजमेंट है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, दे हैव अ वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प का मतलब क्या है? यहाँ पे फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास सॉलिड है, कंसिडर मी एज सॉलिड है, और मैं बोल रहा हूं कि दैट आई एम क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होगा इट शुड बी अराउंड, कुछ भी ले लो 350, बट मेरा फिक्स होगा। मैं अपना मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलूंगा कि भाई मैं 350 केल्विन जैसी आया मैं पिघल जाऊंगा, या 400 केल्विन जैसे आया मैं मेल्ट हो जाऊंगा। जबकि हमारे जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है रेंज में। रेंज का मतलब क्या होता है? इतने से इतने के बीच में, दैट इज कॉल्ड द रेंज। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारा एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है कि भाई इतने से इतने के बीच में हमारा ये मेल्ट हो जाएगा। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज का मतलब होता है काटना। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो तो वो दो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर देता है। क्रिस्टलाइन को आपने लिया, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस एज क्रिस्टलाइन, मैंने इसे यहां से काटा, तो जितने रेशियो में मैं चाहता हूं उतने रेशियो में एक तो कटेगा, और दोनों का जो सरफेस आएगा दैट इज स्मूथ। जैसे आप एग्जांपल समझिए, आपने एक चीज लिया और चीज को आप काट रहे हैं आराम से, तो उसको हमारा क्या होता है? स्मूथ मिल रहा है। जबकि अमोर्फस सॉलिड का पहली बात, एक तो क्लीवेज इनका यूनिफॉर्म नहीं होता, दूसरा स्मूथ सरफेस नहीं मिलता, रफ, और तीसरा कई बार जरूरी नहीं है कि मैं उसे कट करना चाह रहा हूं जिस रेशियो में उसी में ही कट हो। आप ऐसा समझो कि आपके पास एक चौक का क्यूब है, चौक जो आप यूज करते हैं उसका एक क्यूब है, आपने इस तरीके से बनाई कि चौक आपकी सिलेंड्रिकल शेप में नहीं, इस बार आपकी क्यूब शेप में है, और आप उसे कट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जरूरी नहीं है जिस आप पोर्शन में, जिस रेशियो में आप चाहेंगे उसमें ही कट हो, वो किसी भी इरेगुलर पोर्शन में, इरेगुलर उसमें कट हो जाता है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है क्लीवेज प्रॉपर्टी के अंदर, दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस and the newly generated pieces are plain and smooth. That is for crystalline solid. When we are talking about amorphous solid, they cut with irregular surface. ये हमने अभी बात करी थी। Next topic is enthalpy of fusion. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एंथैल्पी मतलब एनर्जी, फ्यूजन यानी कि द प्रोसेस बाय विच वी आर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। तो यहीं से डेफिनेशन बनी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है। अगेन इनकी क्या ऐसी फिक्स क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है कि ये इतने टेम्परेचर पे हमारा मेल्ट हो जाएगा, ये कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि हमारे अमोर्फस सॉलिड अगेन इनकी रेंज में आती है
कि मान लो 380 केल्विन से 420 केल्विन के बीच में ये कभी भी हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये एक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यहां पर मैंने बोला 380 से 420 दैट इज टेम्परेचर नॉट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैं यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कभी भी टेम्परेचर में नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बात आती है एनआइसोट्रॉपिक, एनेंशियोट्रॉपिक बोल देते हैं, कई टीचर इसे एनआइसोट्रॉपिक भी बोल देते हैं। ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता क्या है और आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता क्या है, ट्रोपोसिटी होती क्या है। आप इसको मान के चलिए, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अगर मैं अपने सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूं, मैं अपने गिवन सॉलिड को डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा हूं, तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। डेट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। उनको अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच, अलग अलग डायरेक्शन यानी कि पहले मैं ऐसे आ रहा हूं, दूसरी डायरेक्शन में ऐसे आ रहा हूं, तीसरी में डायगोनल आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, हर डायरेक्शन में उनकी अलग प्रॉपर्टी शो होगी। डेट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। वेयर एज अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मतलब सेम, किसी भी डायरेक्शन से चले जाऊं वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब इस चीज को समझेंगे कैसे, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक मॉलिक्यूल पार्टिकल टाइप ए ए ए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्रिस्टलाइन ऐसे ही दिखता है, मैं मान के चल रहा हूं कि क्रिस्टलाइन में मेरा ऐसे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट की वजह से पहले सारे ए वाले आ गए, फिर बी वाले आ गए, देन अगेन ए वाले आ गए। मैंने इस तरीके से एक अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड का बना के तैयार रखा। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो ध्यान से देखेंगे इस डायरेक्शन से आया तो मैं कौन से पार्टिकल से टकराया, मैं सिर्फ टकराया ए वाले से, तो मैं जो भी प्रॉपर्टी देखूंगा वो सारे कौन से पार्टिकल दिखाएंगे, ओनली ए। अब मान लो मैं इस वाले से आया, अब मैं मान के चल रहा हूं कि मैं ए वाले को बिल्कुल टच नहीं किया, ड्राइंग के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा टच हो गया, ए वाले को मैंने टेंजेंट से छू के निकला, तो मैं सिर्फ कौन से पार्टिकल से गया, मैं सिर्फ बी पार्टिकल से गया, तो जो भी प्रॉपर्टी शो हो रही होगी वो सिर्फ बी पार्टिकल शो कर रहे होंगे। एंड व्हेन आई एम मूविंग डायगोनली, तो डायगोनली देखिए मैं ए से भी गया, मैं बी से भी गया, मैं ए से भी गया और बी से भी गया। दैट मींस अब इस बार डायरेक्शन में मेरे ए बी दोनों पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी अब दोनों शो कर रहे होंगे। दैट मींस विद द चेंज इन डायरेक्शन the properties are changing because the particles that are coming in the direction are changing। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल आ रहा है, ये हमारा दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब बात कर लेते हैं आइसोट्रॉपिक की, बात कर लेते हैं, यहीं पे दोबारा बना लेता हूं अगेन। ये है मेरा एक टाइप का क्रिस्टलाइन अमोर्फस सॉलिड, इसमें कैसा भी अमोर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता, ये बात आप सबको पता है। अमोर्फस में कोई यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी हमारा रिपीट होता रहता है और कितनी बार भी रिपीट हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द शॉर्ट रेंज। अब देखिए व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यहां से मैं ऊपर गया, मेरे बी भी आए और ए भी आए, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, ए भी आया और बी भी आया। अब मैंने डायगोनली जाने की कोशिश करी, ये लीजिए डायगोनली गया, ए भी आया और बी भी आ रहा है। दैट मींस मैं किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर लूं इसे, किसी ना किसी डायरेक्शन में कोई ना कोई एटम दोनों उसका हमारे आ ही जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मैं किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर लूं, वो कहीं ना कहीं से किसी का एक आ गया, किसी के दो आ गए, वो हमारे पार्टिकल की जो मैं डायरेक्शन जा रहा हूं, मेरा पार्टिकल कहीं ना कहीं से बीच में फंस ही जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्योंकि यहां से जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वो ए बी मतलब ए एंड बी दोनों दिखा रहे हैं। अब यहां से जा रहा हूं तो मेरा ए और बी दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यहां से आ रहा हूं तो ए और बी दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दैट मींस दे आर आइसोट्रॉपिक। नाम से याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, सो दे शो सेम property when we are approaching it from different directions. Coming to the next slide, the nature and common example, they are also called true solids। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है, जबकि अमोर्फस को बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड एंड स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मींस फॉल्स, आपने स्यूडोपोडिया के अंदर सुना होगा, स्यूडोपोडिया अमीबा के पास फॉल्स फीट होता है, स्यूडो का वर्ड वहां से आया फॉल्स। एंड देन कॉमन एग्जांपल
कॉमन एग्जांपल हमने पहले भी बात करी थी क्रिस्टलाइन का, कॉपर, सिल्वर, आयरन, या फिर आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, जबकि इसका होता है ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। पेपर में जब आएगा लिखने को तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा कि अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द क्रिस्टल लैटिस। अब जितने भी मेरे क्रिस्टल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ उनका अरेंजमेंट होगा, कुछ ना कुछ उसके लैटिस होंगे। अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट आई एम हैविंग इज सेल। जैसे मेरा ये पेन मान लो, ये पेन किससे मिलकर, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम। ऐसे ही हर एक सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल पे आने से पहले मैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ना चाहूंगा। तो क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सबसे पहली बात, अब जो आप 3D पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल होगी। सॉरी, जो सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा 3 डायमेंशनल होगा। आपको यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सॉलिड स्टेट को एक 2D में पढ़ने, देखिए हमारे पास 3D के वो तो है नहीं कि आपको हमें 3D में सामने रख के दिखा दूंगा कि सॉलिड कैसा दिख रहा है। ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे पूरा आपको प्रेजेंटेशन में पूरा दिखेगा कि कैसे सॉलिड 3D में दिख रहा है, बट जब पेपर में करने बैठेंगे तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, या कोई व्हाइट बोर्ड नहीं होगा, या कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगी जिसके थ्रू हम देख के बता सकें कि हाँ हमारे सॉलिड का ये ऐसा पार्टिकल है, ये इसकी ऐसा अरेंजमेंट है। फॉर दैट वी हैव टू इंक्रीज अवर इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन पावर इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हमारा डेफिनेशन थी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस। Crystal lattice is basically a regular arrangement of constituent particles. Crystal lattice is regular arrangement of constituent particles. जो पोजीशन होती हैं जहां पे मेरा एटम्स प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्रिस्टल लैटिस में, उनको लैटिस साइट बोला जाता है। लैटिस साइट यानी कि पोजीशन एट विच एटम इज फाउंड, पोजीशन ऑक्यूपाई बाय एटम, पोजीशन ऑक्यूपाई बाय एटम ना लिख के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बिकॉज इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इन क्रिस्टल लैटिस। दैट इज कॉल्ड लैटिस साइट। हर एक क्रिस्टल लैटिस, हमारे पास ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही क्रिस्टल लैटिस होगा, अलग अलग टाइप की क्रिस्टल लैटिस होंगे। हर एक क्रिस्टल लैटिस के पास अपने खुद के लैटिस साइट्स होती हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस साइट बोल लीजिए या फिर लैटिस पॉइंट बोल लीजिए। उनके पास अपने खुद के लैटिस साइट्स होती हैं और उसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल आते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, तो सोडियम कहीं बैठा है, क्लोराइड कहीं बैठा है, या फिर मैं CaF2 की बात कर रहा हूं तो Ca2+ कहीं बैठा है, F- कहीं और बैठा हुआ है। बैठने का मतलब है दे आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस इन द गिवन क्रिस्टल लैटिस। अब जो क्रिस्टल लैटिस होता है ये किस चीज से मिलकर बनता है? द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इज कॉल्ड यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न इज कॉल्ड द यूनिट सेल। जो यूनिट सेल होता है वो बार बार अपने आप को रिपीट करता रहता है, रिपीट करते 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 वो क्या बनाता है? क्रिस्टल लैटिस बनाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में सबसे छोटी पार्टिकल क्या है, सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, फंक्शनल एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल, सेल अपने आप को रिपीट करता है, सेल रिपीट करके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, टिश्यू बन अपने आप को क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। इस तरीके से हमारा पूरी बॉडी डेवलप हुई है। सेम ऐसे ही सॉलिड स्टेट के अंदर एक क्रिस्टल लैटिस को बनाने का काम होता है यूनिट सेल का। यूनिट सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करेगी एंड दे फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। देन पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल होती है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स। वन इज बॉन्ड लेंथ एंड द अदर इज एक्सियल एंगल। बॉन्ड लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं A, B and C से। A, B, C आर यूज टू एक्सप्रेस बॉन्ड लेंथ एंड एक्सियल एंगल को यूज करते हैं हम अल्फा, बीटा, गामा से। यहां पर इसमें म्यू बन रखा है, इट कैन बी अल्फा, इन एनसीईआरटी इट इज बीटा एंड देन गामा। ये होते हैं हमारे एक्सियल एंगल, ठीक है। एंड A, B, C क्या होते हैं? हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ना बोल के एक्सियल लेंथ बोलते हैं तो इसे ज्यादा सही रहता है, एक्सियल लेंथ बोलते हैं इन्हें,
आप ऐसे समझो कि हमारे पास ये इस टाइप का है, आपको पता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में ऐसे बना सकते हैं, कैट बी एक्स वाई जेड, तो इनके बीच के एंगल्स को हमने अल्फा बीटा गामा बोला है, और जो ये लेंथ है, जितनी लेंथ में मेरा यूनिट सेल होगी, डेट इज ए बी एंड सी, हमने इनकी बात करी है। ए बी सी हमारे एक्सियल लेंथ होते हैं, अल्फा बीटा गामा हमारे एक्सियल एंगल होते हैं। अल्फा होता है हमारा एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा होता है एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंड जो गामा होता है इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? इनको बोला जाता है अल्फा बीटा गामा, दीज आर माई एक्सियल एंगल एंड ए बी सी आर माई बॉन्ड लेंथ। एक्सियल लेंथ, नॉट बॉन्ड लेंथ, बार बार गलत बोल रहा हूं मैं, एक्सियल लेंथ है। बॉन्ड लेंथ तो दो बॉन्ड के बीच की लेंथ को बोला जाता है, यहां पे गलती से बार बार बॉन्ड लेंथ वर्ड निकल रहा है मुंह से, एक्सियल लेंथ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इनका कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला जो ईच पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस का, डेट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, ये हमें पता है। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कांस्टेंट पार्टिकल्स। जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है वो क्रिस्टल लैटिस बनाता है। एंड द लास्ट, द क्रिस्टल लैटिस आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस। ये इसके सिंपल से हमारे चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में पेपर में कभी नहीं पूछा जाता है, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए। Then comes the type of crystal systems. Basically, we are having two type of crystal system. One is primitive, and second one is centered unit cell. One is primitive unit cell, and another one is centered unit cell. Primitive unit cell वो होती है जिसमें हमारा जो constituent particles है, that is only on corner. ये हमारा सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होता है? कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। इमेजिन करो कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, इसके कॉर्नर्स में, यहां पर इसके कॉर्नर्स में ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल प्रेजेंट है। ये ध्यान से समझना, अभी जब हम नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इसका बहुत काम होगा कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। तो आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव में कहां प्रेजेंट था, एफसीसी में कहां प्रेजेंट था, बीसीसी में कहां प्रेजेंट था, ठीक है। देन अनदर वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में कहां होते हैं? कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर के साथ साथ प्लस सम अदर प्लेस पे भी होते हैं। कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर के साथ साथ हमारे कहीं और किसी जगह पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो कहीं और कहां प्रेजेंट हो सकते हैं? इट कैन बी प्रेजेंट ऑन फेस सेंटर्ड। फेस यानी कि एक क्यूब के फेस के सेंटर के बीच में, ठीक है। एक क्यूब इमेजिन करिए, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, इमेजिन इट एज अ क्यूब। अब जो इसका ये फेस है, इसके यहां सेंटर पे मेरा ऐसे एक एटम है कि यहां पे मेरा एक पूरा एटम इस टाइप का यहां पर है, दैट इज कॉल्ड द फेस सेंटर्ड। कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, प्लस इसके फेस के सेंटर पे भी है, दैट इज माई फेस सेंटर्ड। अब बात करते हैं सेकंड की, बीसीसी। बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड, कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ एक पूरे रूम के जो आपका सेंटर है, बॉडी का सेंटर, वहां पर प्रेजेंट है। आप इमेजिन ध्यान से करेंगे कि अपने आप को इमेजिन करिए कि आप उसकी सेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो कॉर्नर पे तो आपको हर कॉर्नर पे एटम दिख रहे हैं, उसके साथ साथ रूम के बीचों बीच एक एटम है, दैट इज कॉल्ड बीसीसी। एंड लास्ट इज ईसीसी। ईसीसी हमारे सिलेबस के नहीं है, ईसीसी बिल्कुल भी हमारे सिलेबस का काम नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस इतना बताऊंगा कि इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, एंड एट ऑल सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेस। आगे बात कर लेते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटिस आते हैं, बेसिकली 7 होते हैं। सबसे पहला होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। अब ये सातों के नाम कैसे लर्न करने हैं? सिंपल सी ट्रिक है इसके लिए। इसके लिए ट्रिक का नाम होता है सी। सी मतलब देखो टॉम, टॉम एंड जेरी सबने देखा होगा, सी टॉम देयर। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, हर टीचर के पास अपनी अलग अलग ट्रिक होती है। मेन बात है आपको लर्न होना चाहिए, चाहे किसी भी ट्रिक से हो। तो जो ट्रिक मैंने याद कर रख रखी है, मैं आगे बच्चों को पढ़ाता हूं, दैट इज सी टॉम देयर। सी टॉम देयर का मतलब क्या होता है, कैसे लिखेंगे? देखो, सी टॉम देयर, TH ई नहीं लिखना, R। तो C इज क्यूबिक, T इज टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक,
ट्राइगोनल, ओ सॉरी ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, यही नाम है. अगेन आई एम रिपीटिंग, C इज क्यूबिक, T इज टेट्रागोनल, O इज ऑर्थोरोम्बिक. क्यूबिक हमारा ये रहा, C टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, M इज मोनोक्लिनिक. बस यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गए. जो T है दैट इज माई ट्राइक्लिनिक, H इज हेक्सागोनल एंड R इज रोम्बोहेड्रल. C टॉम देयर, C टॉम देयर इज द ट्रिक टू लर्न ऑल द नेम्स, कि किस तरीके से नाम याद रखना होता है. क्यूबिक के अंदर बात करते हैं. क्यूबिक हमारी एक परफेक्ट अरेंजमेंट आती है, बिकॉज A इक्वल B इक्वल C एंड ऑल द एंगल्स अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री. ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. देन कम्स टेट्रागोनल. टेट्रागोनल वो साइड उस यूनिट सेल होती है क्रिस्टल लैटिस जिसके अंदर A इक्वल B बट नॉट इक्वल टू C होता है, बट अगेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दैट इक्वल टू 90 डिग्री. और याद रखेंगे इसमें A इक्वल टू B है, नॉट इक्वल टू C है, जबकि इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है. जब हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की, ऑर्थोरोम्बिक में ना ही A B के इक्वल ना ही B C के इक्वल, बट ऑल एंगल्स अल्फा बीटा गामा दे आर 90 डिग्री ईच. मोनोक्लिनिक A अगेन नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C. मैंने ये बात बोली थी आपको, जरूरी नहीं है सारी की सारी लेंथ हमारी सेम हो, सारी की सारी अलग हो. वो सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, तभी तो हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स आए. एंड लास्ट, इसके अंदर मोनोक्लिनिक के अंदर जो एंगल्स होते हैं कोई भी दो, या तो अल्फा या बीटा, दे आर 90 डिग्री, बट द लास्ट वन गामा दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर. हेक्सागोनल की बात करते हैं. हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B होता है दैट इज नॉट इक्वल टू C, एंड टू एंगल्स आर 90 डिग्री बट द वन एंगल इज 120 डिग्री. इसमें जो एक एंगल होता है वो कैसा होता है, 120 डिग्री. रोम्बोहेड्रल, all the axial length equal, A equal B equal C, but and all the angles are equal but they are not equal to 90 degree. A equal B equal C and alpha equal beta equal gamma, but they are not equal to 90 degree. And सबसे ज्यादा disturbed जो अरेंजमेंट होता है that is ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक को ऐसा क्यों बोला गया, ना ही इसमें कोई साइड इक्वल होती है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और ना ही अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, कोई इक्वल नहीं होता है. दैट्स वाई हमारे ट्राइक्लिनिक को मैंने सबसे ज्यादा डिस्टर्ब बोला गया है, जबकि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारी क्यूबिक. कमिंग लास्ट टू द लास्ट स्लाइड, these are the 7 crystal lattice. As you can see, A B equal A, C equal A, and angle are equal. This is my 3D arrangement of cubic. Coming to the tetragonal, टेट्रागोनल में देखिए एंगल्स इक्वल हैं, पर उसमें A इक्वल B एंड C देखिए थोड़ा सा खिंचा हुआ है. ऑर्थोरोम्बिक B थोड़ा सा इलोंगेट हो रखा है. हेक्सागोनल में एंगल 90 डिग्री हमारा क्लियरली दिख रहा है. रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था 90 डिग्री नहीं होगा, इक्वल होंगे पर 90 डिग्री नहीं होगा. मोनोक्लिनिक में क्लियरली अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 90, अल्फा 90 गामा 90, जबकि ट्राइक्लिनिक में ना ही A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ना ही अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा. इसके साथ ये हमारी इंपॉर्टेंट है बेटा कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द 7 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. याद रखना, C टॉम देयर इज द ट्रिक. C for cubic, T for tetrahedral, C term, O for orthorhombic, M monoclinic, there T triclinic, H hexagonal, R rhombohedral. ये ट्रिक से लर्न करना पड़ेगा. प्लस मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बताऊंगा कि आपको A B C की कैसे लिखना है, अरेंजमेंट कैसे लर्न करेंगे, और अल्फा बीटा गामा का कैसे आप लर्न करेंगे. ऑल्सो इसमें एक छोटी सी स्लाइड छूट गई थी कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी. अब हम अमोर्फस की बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर शॉर्ट रेंज, उसकी बात ही तो करनी नहीं है. तो हम किसके बारे में बात करेंगे, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड. देन जो मॉलिक्यूलर होता है उसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
अब इनकी स्लाइड जो है मैं आपकी जो नेक्स्ट पीपीटी बनाऊंगा उसके अंदर मैं सबसे पहले यही स्लाइड इंक्लूड करूंगा एंड देन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, प्लस हम इसके आगे का करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि हमारे कितनी टाइप की अरेंजमेंट्स होती, किस क्या होता है सॉलिड स्टेट, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ा, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस के बारे में हमने डिटेल स्टडी करी कि उनके डिफरेंस कैसे लिखेंगे, प्लस हमने पढ़ा कि किस टाइप से एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीसीसी, एफसीसी। बीसीसी के अंदर कॉर्नर में होंगे और बॉडी सेंटर पे होंगे, एफसीसी में कॉर्नर पे होंगे प्लस फेस पे होंगे, और जो मेरी सिंपल प्रिमिटिव सेल है उसमें सिर्फ हमारे कहाँ पे होंगे, हमारे सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। देन हमने पढ़ा टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस के 7 टाइप्स, सी टॉम देयर हमने ट्रिक लर्न करी, उनके बीच के मैंने अल्फा बीटा गामा के रिलेशन पढ़े एंड ए बी सी के रिलेशन पढ़े। आई होप सो यू ऑल लाइक द वीडियो। नेक्स्ट क्लास जो हमारी चलेगी उसमें याद रखना मैं आपको पहले ट्रिक सिखाऊंगा, जो पहले स्लाइड छूट गई थी उसके बारे में बात करेंगे एंड देन उसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले इस पीपीटी को जरूर देख लेना, इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सॉलिड स्टेट को 3 पार्ट में कवर करेंगे, पहला पार्ट आज हो चुका है, बाकी 2 पार्ट हम नेक्स्ट क्लियर करेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड द पैकिंग एफिशिएंसी, डिटेल्ड वीडियो होगी एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, उनका सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। सो द सेकंड वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर सॉलिड स्टेट। प्लीज वॉच इट एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू। बंद कर